Assalamu alaikum, audience and listeners. Welcome to ARD Women's Podcast, episode number 22. Um, we have three agendas today. Of course, the revealing, or you can say the shocking interview of Tanya Malik with Daniel Rasool, PCB's step back from the Women's Super League as expected, and of course, the history created by the Portias in Australia, defeating Australia for the first time in ODI and T20s. So let's get started. We have here Sakina and of course me, Hussaina. So how are you doing, Sakina? I'm good, Hussaina. How are you? I'm good. Alhamdulillah. Okay, so will of course according to Tanya Malik's interview, उन्होंने बोला है कि the the Women's Super League will happen in 2025. Do you think the Super League will happen in 20? Please comment your answers and let us know what do you think about the whole situation. So coming towards coming towards the interview, of course, with ESP and Daniel Rasool. So, what were your reactions, Sabina? Was it understandable? Was it baffling, or it shouldn't have happened? What? Yeah. Okay. When I first read it, I was a bit confused. What was the point of it? Because I'm not sure what Tanya Malik was trying to do. It feels like she was absolving herself of any blame. She was putting all the blame on the top management of the PCB. Obviously, they are the people to blame for it. But it at the same time it feels like Tanya was like कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है. Everything depends on them. Then Uh, okay, that's fine as well. But there was like few of the points that were totally like were not consistent with what she was saying and what is happening in the women wing right now. So yeah, it was confusing. It was like I'm not sure what was the point of it. uh, Very honestly. yeah, same from my side as well. I was a bit confused कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला है आके. It shouldn't like इतने साल. I think 2.5 years she has been the head of Hmm. women's cricket without any development. So it's a bit confusing. So okay, taking the direct quotations from Tanya Malik, जो उन्होंने बोला है कि financial reasons is the reason वो नहीं कर सकती. um, sorry, Women's League PCB host नहीं कर सकता, but with the ICC proposed financial model and everything, it's in the obvious कि PCB Hmm. has the money to host leagues. But do you think this is the reason कि financial reason एक reason है कि उसकी वजह से वो लोग league host नहीं करेंगे? नो आई डोंट थिंक सो क्योंकि अगर आप देखो तो जिस टाइम ओके अगर हम लास्ट 2 या 3 इयर्स की बात करते हैं तो जिस टाइम रमीज राजा आए तो उन्होंने जूनियर लीग कराई तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट हुए फिर आपकी जब अभी की जो मैनेजमेंट कमेटी थी जो जका अशरफ हेड कर रहे थे उन्होंने T10 लीग कराने के लिए पूरी उसकी तैयारियां की तो आप ये वाली बात भी कह रहे हो कि ओके वी डोंट हैव अ मनी वी डोंट हैव अथॉरिटी टू डू दिस एट द सेम टाइम यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग कंप्लीट समथिंग अलोंग द लाइंस बट नॉट फॉर द वुमेन साइड बट फॉर द मेन साइड तो ये डबल स्टैंडर्ड फील होते हैं उस चीज को देखते हुए क्योंकि अगर तो जका अशरफ साहब को या मैनेजमेंट कमेटी को पहले से ही इस चीज का इल्म था या पहले से इस चीज की अवेयरनेस थी कि हम लोगों के पास इतना अख्तियार नहीं है कि वी कैन मेक दिस बिग ऑफ अ फाइनेंशियल डिसीजन तो वो फिर T10 लीग के लिए क्यों तैयारी कर रहे थे अगर तो उनको अवेयरनेस थी तो फिर तो इट डजंट मेक सेंस ना इसका मतलब ये है कि उनको अवेयरनेस नहीं थी या फिर उनको था कि हम इसको कर सकते हैं डिसीजन ले सकते हैं तो फिर अगर डिसीजन ले सकते हैं तो व्हाई नॉट फॉर द वुमेन साइड व्हाई नॉट फॉर द वुमेन PSL एंड एट द सेम टाइम T10 और जो जूनियर लीग है वो हमारी नीड भी नहीं है सच हमारी नीड तो वुमेन PSL थी तो जस्ट बिकॉज यू वांट टू you don't understand the depth that you need for the women's cricket और the world कि कितनी तेजी से जो है वो वर्ल्ड मूव कर रहा है इस टाइम वुमेन क्रिकेट के उसके अंदर फाइनेंशियल चीजों को लेके भी तो अगर आप सिर्फ इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं वेयर यू डोंट वांट टू गिव समथिंग टू योर वुमेन साइड यू जस्ट वांट टू रिजर्व एवरीथिंग फॉर द मेन साइड तो ये चीजें फील होती हैं बजाय इसके कि आपके पास पैसे नहीं थे या फिर आपके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी नहीं थी
ओके, सो टॉप इट ऑफ वुमेन्स, उन्होंने 70 प्लस डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स अभी अनाउंस किए, तो दैट काइंड ऑफ इंडिकेट्स कि पैसा तो है, बट इन्वेस्ट उन लोग को सही जगह नहीं करना. ऑल्सो विद द सक्सेस ऑफ WPL, वुमेन्स IPL, बिल्कुल। लग रहा है कि सक्सेसफुल, अगर PCB कराना चाहे तो it will be a successful thing. People will be interested in women's cricket, but PCB doesn't want to have nice things, and they don't want to have, they rather have T20 leagues, T10 leagues, sorry, T10 leagues, rather than have a good women's cricket league. I don't know what they're like. Yes, so another excuse, I would call it an excuse that they give, that they don't want to compromise on the quality of the league. कि अब अभी वो लोग चाहते हैं कि अभी जो लास्ट ईयर हुआ था एग्जीबिशन मैच, तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि वो मेंस की, मतलब कि मेंस की क्वालिटी का PSL, बट यू थिंक दिस इज द रीजन, एक स्टार्ट हो जाए तो ऐसा ऐसा एक चीज डेवलप हो जाती है, तो इट बिकम्स अ ब्रांड. But also the fact that national T20 में they didn't, women's national T20 didn't have subpar quality. So do you think this is the excuse के हम लीग नहीं होल्ड कर पा रहे क्योंकि हमारे पास स्ट्रीमिंग क्वालिटीज अच्छी नहीं है, कैमरा सॉरी ब्रॉडकास्ट क्वालिटी अच्छी नहीं है, सो in subpar with the men's league, of course. नो एक्चुअली आई गेट दैट पॉइंट कि आपको जो है वो क्वालिटी मेंटेन रखनी होगी उसके लिए, लेकिन ये कहना कि हम वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रख सकेंगे या फिर हम कर नहीं सकते, ये गलत कोटेशन है. अब एक सिंपल सी चीज़ है, उन्होंने एग्जांपल पे खुद ही दी इस इंटरव्यू के अंदर कि एग्जीबिशन मैचेस के दौरान जो थी क्वालिटी उसके साथ मेंटेन रखी गई, क्योंकि आप मैं PSL जो था वो उस टाइम चल रहा था. तो इट्स अ वेरी लाइक काइंड ऑफ आपके लिए मॉडल है कि आप PSL के साथ ही वुमेन PSL का भी इनेकाद करा सकते हो, कि आप जो है डबल हेडेड मैचेस के थ्रू पे, या फिर आप जब एक दिन का गैप करके एक दिन वुमेन्स लीग के मैचेस हो रहे हैं, एक दिन आपकी मेंस लीग के मैचेस हो रहे हैं, फॉर अ स्टार्ट आप ये काम भी कर सकते हो एंड इट वुड मेक सेंस. WBBL भी बहुत लंबा अरसा इसी तरह चलती रही थी, यहाँ तक कि जब T20 वर्ल्ड कप है वो बहुत एक टाइम पीरियड के दौरान PCB जो है वो इस तरीके से कंडक्ट कराता रहा है. तो सॉरी ICC इस तरीके से कंडक्ट कराता रहा है कि दोनों वर्ल्ड कप्स जो थे वो साइड बाय साइड चल रहे होते थे. तो ये चीज़ें आप कर सकते हो टू मेंटेन द ब्रॉडकास्ट और द क्वालिटी ऑफ द टूर्नामेंट. तो और जहाँ तक आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर रेज़ किया है ना कि जो हमारी नेशनल वुमेन चैंपियनशिप हुई है, उसके अंदर जो थी वो ब्रॉडकास्ट क्वालिटी बहुत ही खराब थी. मतलब स्ट्रीमिंग जो हो रही थी एक मैच की, वो भी इतनी बुरी थी कि आप जो है उसको देख ही नहीं सकते थे, देखने के काबिल ही नहीं थी वो. और फिर ग्राउंड क्वालिटीज़ भी, कि कुछ दो आई थिंक अयूब पार्क जो ग्राउंड है उसके मुतालिक बार-बार हम लोग को कहा जा रहा था कि उसकी जो फील्ड है वो ऐसी नहीं है कि जहाँ पर आप जो है प्लेयर्स अच्छे तरीके से फील्डिंग कर सकें, या फिर वहाँ पर इंजरीज़ के खदशात बहुत ज़्यादा हैं. तो अगर आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल है, और फिर इसी इंटरव्यू के दौरान तानिया मलिक ने एक और बात भी कही कि हम पे कोई फाइनेंशियल कैप नहीं लगाया गया. इट मीन्स कि जो पहले PCB बहुत अच्छे क्वालिटी के टूर्नामेंट्स कराता रहा है डोमेस्टिक के, यहाँ तक कि बिल्कुल आपके जो मेन स्टेडियम्स हैं उसके अंदर मैचेस हुए हैं. तो इसका मतलब ये कि आपके पास सब फाइनेंशियल रिजर्व्स मौजूद थे एंड इट वाज़ योर चॉइस कि आपने जो है वो उन चीज़ों को जो है वो एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया. यस ऑफ कोर्स. और ऊपर से हम लोग ने ये एक और चीज़ आपने सही पॉइंट रेज किया, मुझे बस एक और चीज़ पे गुस्सा है कि दे डिडंट हैव अ रिजर्व डे फॉर द फाइनल. इट वाज अ गुड लीग, अदरवाइज क्वालिटी बकवास थी, बिल्कुल. बट कॉम्पिटिटिव मैचेस थे. It could, यस. if it was broadcasted, it could, इतने close matches हुए, and हुँ. it was a centuries glory, and people would have enjoyed watching those matches अगर TV पे बिल्कुल. broadcast हो जाते, या फिर YouTube पे अच्छा broadcast link मिल जाता, तो it would have been a good tournament to be held. But uh, what to say, of course. Yes, exactly. Okay, so coming towards Tanya Malik's closing point, she said that she doesn't feel frustrated about the management, and feels like they have put anything, but no frustration after working 2.5 years. आपको लगता है कि it's a genuine excuse to give up, and genuine genuine reaction to have after. Yes, exactly. Because I was like कि आप ये कह रहे हो कि आई एम नॉट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, देन हाउ आर यू लाइक आप एक हेड कर रहे हो वुमेन विंग को, आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि प्लेयर्स क्या फील कर रहे हैं ग्राउंड लेवल के.
एंड यू जस्ट सेड कि आप तो फ्रस्ट्रेटेड हो ही नहीं इस चीज़ को लेके। तो आपने क्या रिलेट करना है उस ग्राउंड प्लेयर के साथ जिसके जो एक ख्वाब देख रहा था कि ओके आई विल बी एबल टू प्ले द लीग, मुझे जो है वो मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ लीग खेलूँगा। हमें जो है प्रॉपर तरीके से कवरेज मिलेगी और सब कुछ। उसके साथ आपने क्या रिलेट करना और आपने क्या पैगाम जाके दिया होगा प्लेयर्स को कि ओके पीसीबी इज़ शेल्विंग द लीग या फिर एग्ज़िबिशन मैचेज़ नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं? आपने जाके यही कहा होगा प्लेयर्स को कि भई देखिए हमने पूरी कोशिश की थी लेकिन वो नहीं मान रहे तो हम क्या कर सकते हैं? दिस इज़ नॉट द वे टू डील विद दीज़ थिंग। और आप ऊपर से फिर फैन्स को भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कि मैं मतलब हम लोग जो हैं, जो उनके देखते हैं वो इतने गुस्से में हैं पिछले कुछ टाइम पीरियड से, तो आप उनका भी ख़्याल नहीं कर रहे हो कि मैं जो वर्ड अ, यूज़ कर रही हूँ कि मैं तो फ्रस्ट्रेटेड हूँ ही नहीं, उससे उन पे क्या इम्पैक्ट आएगा? सीधी-सी चीज़ है। And also with the success our women's team had in with South Africa and in New Zealand, the historic tour, हुँ, or Nidar Dar has credited the exhibition matches that were held last year. बिल्कुल, Uh, तो आप इस पॉइंट पे आके बोलोगे कि एक साल बाद हमें सक्सेस मिल गई, हमें अब लीग नहीं चाहिए? दैट्स नॉट द वे टू गो. Exhibition matches बिल्कुल, को they could have been held, but they जो बस मिल गई, हमें अब लीग नहीं चाहिए. That's not the way to go. Exhibition matches बिल्कुल। को they could have been held, but they don't want to, I guess. Okay, so यस एग्ज़ैक्टली हसैना, अब एक चीज़ इसमें ये भी है कि अब बार-बार प्लेयर्स ये बात कर रहे थे कि हमने जब इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेला तो हमने रियलाइज़ किया कि वो किस अप्रोच को यूज़ करते हैं। बात ये है कि आपको वही चीज़ें, वही सब कुछ जो है मिरर नहीं करता आपका डोमेस्टिक क्रिकेट जो है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट की चीज़ें हैं। तो जब वो मिरर नहीं करता आपके प्लेयर्स को नहीं, वो उस चीज़ के लिए क्या कहना चाहिए आदी नहीं है उन सिचुएशंस के मुताबिक खेलने के लिए, ठीक है? तो जब इस फिर आपको उन एग्ज़िबिशन मैचेज़ में आपको प्लेयर्स को थोड़ा-सा रेडी किया कि ओके, अगर हम लोगों को फर्स्ट बॉल से अटैक करना है, एक प्लेयर को ये इस चीज़ की दूसरा है कि बेशक विकेट्स गिर रही हैं बट आई नीड टू मेंटेन दैट रन रेट, तो मुझे अटैक करने के लिए जाना है, डज़न्ट मैटर कि मैं जो हूँ वो आउट हो जाऊँगा। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी प्लेयर्स के लिए। और उन्होंने ये सीखा भी, लेकिन अगर आप वही वाली बात है कि दोबारा से इतना लंबा गैप देंगे उन चीज़ों के दौरान, उस लर्निंग म जहाँ से वो लर्न कर रहे हैं, उन चीज़ों को बिल्कुल रोक देंगे, तो आपका प्लेयर दोबारा से स्टक हो जाएगा। of course, but एक पॉइंट पे तानिया मलिक ने मेंशन किया हुआ है कि 2025 तक they will have women's PSL. So do you think कि PSL होना है 2025 तक, या फिर they will have exhibition matches, या फिर वो भी नहीं होंगे? I hope हो जाए. I don't think I think she said कि she can't promise on it or something like that, if I'm recalling it correctly. तो आई एम नॉट श्योर, लाइक वेरी ऑनेस्टली आई एम नॉट श्योर। एक टाइम के अंदर आपको लगा था कि ओके वी विल हैव दैट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीसीबी इस चीज़ को लेके अवेयर भी है कि, और अभी तो आपकी गवर्नमेंट बनेगी तो पता चलेगा कि मोहसिन नकवी साहब भी जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते एज़ अ चेयरमैन। तो आई डोंट थिंक कि पीसीबी इस टाइम अवेयर है कि वो क्या कर रहा है। आप एक खुद सोच के देखो कि इस टाइम इंग्लैंड जो है वो हर समर सीज़न के, मैं बार-बार ये बात कहती हूँ कि इंग्लैंड हर समर सीज़न के पिछले सीज़न से ज़्यादा टिकट जो है वो फ़रोख्त कर रहा है इस टाइम। वुमेन पीएल के अंदर वी सॉ के जो थे वो हाउसफुल गए बहुत सारी गेम्स मैचेज़ उनके। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत कम ड्यूरेशन लगेगा इन कंट्रीज़ को उस पॉइंट पे आने पर कि जहाँ पर उनकी वुमेन क्रिकेट भी फाइनेंशियली जो है वो स्टेबल हो जाएगी, उसको मेंस क्रिकेट के जो अर्निंग है उससे शेयर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका जो पाकिस्तान है, अगर हम टॉप 10 कंट्रीज़ की बात करते हैं तो उसकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा रिलक्टेंट है। उसकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा जो है वो हाथ खींचती है इन चीज़ों से, और ये वो प्रोडक्ट है जिसके लिए आपने ऑडियंस को तैयार करना है, इसके लिए आपने ऑडियंस को खुद मोटिवेट करना है टू गो एंड वॉच। तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपने मतलब कि उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दिया है। हमने जो मेंस पीएसएल थी वो भी बहुत टाइम लगा था हमें, बाकियों से बहुत टाइम बाद हमने जाके अपनी पीएसएल लॉन्च की थी। और हमने फिर देखा भी था कि हमें उस पीएसएल का कितना फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमारा प्लेयर जो था वो एक बहुत बड़ी लीग जो बिल्कुल हमारे नेबर में होती है आईपीएल, उसमें नहीं खेल रहा था। अभी भी वही चीज़ है कि हमारे प्लेयर वहाँ जाके नहीं खेल रहे हैं, और हमारी वुमेन टीम की तो बदकिस्मती कह लें या
जो भी सिचुएशन है वो इस तरह की है कि हमारे प्लेयर्स को बाकी और दूसरी लीग्स में भी मौका नहीं मिल रहा उस तरीके से। तो आप आपकी ग्रोथ को कितना बड़ा कि कितनी ज़्यादा ये हार्म करेगी और आप फाइनेंशियली कितना पीछे रह जाएँगे बाकियों से, इस चीज़ के ऊपर मेरा नहीं ख़्याल कि पीसीबी अवेयर है। और जब तक कि वो राइट मोटिवेशन नहीं होगी, राइट पीपल नहीं होंगे टू डू द जॉब, आई एम नॉट श्योर। लाइक मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती हूँ पीसीबी से कि हमें 2025 के अंदर लीग मिलेगी। Truly well put, and also the fact that हमारे players को exposure नहीं मिलता. We have really less matches in calendar year, पर उसके हुँ। बावजूद हमारे players अपने limelight light में नहीं आते because they are not playing other leagues. The biggest league, obviously, women's PSL, sorry, women's IPL, वो नहीं खेलने को मिलती, तो of course उन लोग की growth hinder हो जाती है. So well, Africa. So how do you see the South Africa win against the Aussies for the first time, and what are the key players? जो आप उनको shout out देना चाहती हूँ, the players that sorry, the players that are responsible for the win, that win. यस एग्जैक्टली एज यू सेड। अब इट्स सो लाइक आप इस चीज़ को अंदाज़ा करो कि साउथ अफ्रीका इज़ अ टीम जिसने फाइनल्स भी खेले हैं वर्ल्ड कप के, जिसने जो है वो सेमीफाइनल्स भी खेले हैं, एंड दे ऑल्सो उन्होंने अपनी हिस्ट्री के अंदर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को बीट नहीं किया हुआ था। दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस कि वो टी20 में या ओडिया में किसी भी फॉर्मेट के अंदर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जो है वो बीट किया। तो इट वाज अ हिस्ट्री ऑन इटसेल्फ, और ऑब्वियसली इट वाज अ बिग थिंग। चाहे आप कोई एक्सक्यूज कर लो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि ओके दे आर इन अ बिट ऑफ अ ट्रांजिशन, लाइक नॉट रियली, बट वी कैन से, लेकिन इट वाज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर द साउथ अफ्रीका क्रिकेट। और यही चीज जो है वो बार बार हम लोगों को पता चलता है कि जो गैप है वो अब जो है वो कम होता जा रहा है, और एंड वी आर इन फॉर अ वेरी लाइक कम्पिटिटिव टाइम पीरियड फॉर द वुमेन क्रिकेट। और आपने जिस तरह बात की, obviously Mirjana Cap, she is like absolutely wonderful player. आप as an all-rounder, I think she is like a dream player for every captain to have, every team to have. और वो जिस तरह की कंप्लीट प्लेयर है जो कि मैं कहती हूँ कि बॉलिंग के अंदर, बैटिंग के अंदर, इवन फील्डिंग के अंदर, एंड शी हैज अ ग्रेट माइंड एज वेल। एज अ सीनियर प्लेयर वो जितना सपोर्ट करती है साउथ अफ्रीका की बाकी साइड को, तो शी इज एन अमेजिंग प्लेयर। इसके अलावा इस इसके अलावा आई विल से कि जो टी20 जीता था उसके अंदर ऑब्वियसली वुल्फी का एक बहुत बड़ा रोल था, बट आई थिंक वी नीड टू अप्रिशिएट बिट्स एज वेल, बिकॉज अगर एक प्लेयर जो है थोड़ा सा एंकर के स्टाइल की इनिंग खेल रहा है, तो उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक दूसरा प्लेयर जो थोड़ा सा जो है वो हिट करके जाएगा और रिस्क लेगा शॉट्स के ऊपर। तो बिल्कुल एट द स्टार्ट ऑफ द इनिंग जो है बिट्स ने जिस तरीके से जो है बैटिंग की थी, एंड शी डिजर्व्ड अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दैट विन। और इट्स रियली गुड टू सी कि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन जो है हो रहा है। आई नो ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इवन तो दे विन बोथ द सीरीज, बट आई नो कि वो बहुत ज़्यादा इस पे बुरा फील कर रहे होंगे, बट वी आर एन्जॉयिंग इट, सो हू केयर्स? Let's hope for a more good and competitive matches or more such upsets. Yeah, every Aussie defeats brings me joy. Okay, so we discussed these things in this episode of obviously Tanya Malik's interview, the exhibition matches, and WSL call off, and obviously the history of Proteas. So wanted to end this episode on this note. So let us know any thoughts or comments, like